Ang to ko video de yam. Han kheba tum chakan de. प्रोग्राम यहीं करके भेजने का Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. May peace be upon all of you, and good afternoon to all who are coming all the way from nook and corner from Manipur. Guys, are you really excited? Yes, no, or maybe? All together. Now, I would like to call some of, and the second one is Bariyajuddin, Finance Officer, Ahanbi. Manipuri Nazam Mohammad Nakim, please come over the stage. Hello. Hello. Bay pen बनाए रखते रे सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई सजदों से तेरे क्या हुआ Now I request والضحى والليل إذا سجى ما Thank you, Jazakallah. Nungsit ng na ay lipto na fatwazib ni re ay gi rasul tilhallaga Muhammad ki student from Manipur who wants to perform. We're going to present a bouquet and Lengyan fee to our chief guest, Munawwar Zaman. चलो चलो पढ़े नमाज हम चलो 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 पढ़े नमाज हम चलो 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 पढ़े नमाज हम मोमिनो नमाज़े पढ़ो मोमिनो का मुक्तदा है और अजम सरों पे To give a real idea of Manipur,
in the form of like public speaking skill. So now I call. Warmly welcome to Manipur. Thank you so much for visiting in Manipur today, Chief Guest. We already know Manipur is a shining pearl in the 27 square kilometer. There are 16. The Meitei Pangal is also known as the Pangal or the Manipur Muslim. To compare with State Everest. Now, our Muslim community is developed. With his passionate team members travel almost all the states in India and abroad. So far, he honor Manawazama with the following award. In the year 2011, hello. Hello. Assalamu alaikum. Koigi mayam gi mangda jiling bi reiba saab se Munawar Jama saab se yamna han budi natte masai chahi nifutaruk nifutre around 46-47 years old. Hyderabad dagi kilometer chamarom Lapna Leva Pamama the Pope in 1976. Mana come mind on a serious just for the youngsters. Mana English sida karam mind on the personality development sida interest Loki Vigedung aside Narcis Habna Mayam the high Badamado Palamdre Masisu enthusiasm gi Angang Makagi Matsakaman in Hogalaga Mayam the Pet Panmani. Matamduda 1993 gi swaida cricket match tawbasida aikoi Azharuddin cricketer Azharuddin sina cricket sanabagi karigi tawde interest tu yam lawbaduda mai masagi chahi 39 kadasroko matamduda ane radio si transistor si adum tabasida commentary si English tang hak tawba Hindi dang hak tawba adu English ta Torok Pasidi Madi Kangdre, my English Kangdam, Nina, my Adwagi local school, the Tamaga, Hyderabad, English speaking, English medium, the Tambanatamina. Ad English ki Kangda was more than my chat to Adonai Hindi commentary, Silaga Hindi, si Taraga Sumta Basida Magi, inner Manungi, Wakangi, Manungi, feeling among the Maichak, my pesan nama. Maichak mangonda English si haitaba yadi haiba mangonda chapchana magi determination nama ma chahi 3 sorakpa adwaida chen khiba magi maichak tuna mana konna English si tamaga mathang ki tawraga ma master ga kai ga tawrakpani maruina magi oja haiba dare Hamad aina aduna magi parent makhai desu laaga masi Kon English ki apau boja mo uibi yani ko haina makoida so hairaga ma sigi line da purakhiwadagi Delhi da karida laaga ma masigi personality English tam khare English hai khare adugi personality development se koi motivational speaker haiba sida koi personality si mioi bagi koi mi amagi oipham thokpa personality sigi karam haina develop tawgadagi haibagi development si karam hain tawgadagi haiba field sida koi Munawar Jama sahab si hujikti world pumba ma si maming chakre mayam ayam baloina khangnarabani USA da oiro Great Britain da oiro England da oiro Middle East da Dubai da karida amada India manungi bodi paksanna mayam loina khangnarabang haktani aduni achamba Minate Maruina, Haloeva Singidi, Sayam, Karama Kaigidi, was you personality development, Matamsi, later Banina,
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯌꯪꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯃꯜ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Assalamu alaikum and a very good evening to you all wonderful people. मैंने अरबी में और इंग्लिश में दोनों में सलाम किया, मुझे एक ज़ुबान में भी जवाब नहीं मिला। भाई मणिपुरी में क्या बोलते हैं बताएं? हाँ जी, वरना ऐसा लगता है फिर मैं कोई दूसरे देश में हूँ और ज़ुबान नहीं जानता हूँ। अगर 500 स्पीकर्स स्टेज पर आते हैं, 500 दफ़ा सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो all 500 times you're supposed to respond. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो खूबसूरत इस्लाम को स्प्रेड किया है ना पूरे दुनिया में, सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये 4 चीज़ों से नहीं, ये 4 मैंडेटरी हैं. इट इज़ मैंडेटरी अपॉन ऑल द बिलीवर्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. जो 5 पिलर्स हैं इसमें कोई छूट नहीं है, ये कंपल्शन है. 5 में फिर 2 मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है. वो क्या है? हज और ज़कात. इतना आसान इस्लाम है कि हज सब पर फर्ज नहीं है, उन पर है जिन्हें अल्लाह ने पैसों से नवाजा है. अल्लाह ने बहुत से लोगों को पैसों से नवाजा है, तो वो लोग हज पर जाते हैं, उम्रा करते हैं, कोई गारंटी नहीं कि उनका हज कबूल होता है कि नहीं होता है. कोई गारंटी दे सकते हैं? Nobody on this earth can assure and can give guarantee that Allah has accepted my umrah, Allah has accepted my hajj. लेकिन एक ऐसा गरीब इंसान है जिसके पास उम्रा हज करने का कोई तसव्वुर ही नहीं है, बैंक बैलेंस तो दूर, बैंक अकाउंट ही नहीं है उसका. जब वो अपने वालिदैन को मुस्कुराते हुए देखता है तो मकबूल हज का सवाब है. कैसा? मकबूल यानी कबूल होने वाला. क्या खूबसूरत इस्लाम है. देखें, हज आज के ज़माने में बहुत आसान है. 3 घंटे 4 घंटे में आप जद्दा पहुंचेंगे. लेकिन आज से 500 साल पहले इमेजिन करें, जो लोग हज पर जाया करते थे, रो रो कर जाया करते थे, घरों में, रिश्तेदारों में, मोहल्लों में सबसे मिलकर माफ़ी तलब कर रो रो कर जाया करते थे. क्यों रो रो कर जाया करते थे? और इस ज़माने में जो लोग हज पर जा रहे हैं, आप देखें, वो घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सबसे माफ़ी मांगकर हज पर नहीं जा रहे, सिर्फ अपनों से, चारों से. आज का ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है.
फिर भी पता नहीं चलता है कि बराबर घर वाला बंदा उम्रे पर गया हुआ है, हज पर गया हुआ है। हालांकि कैसा जमाना है ये, टेक्नोलॉजी का जमाना है। एक सेकंड में पता चल जाता है कि दुनिया के कौन से कोने में क्या चीज हो रही है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी का कोई तसव्वुर नहीं था, आज से 500 साल पहले बंदा कोई हज पर जाता तो पूरे गांव में सबको पता चलता था। वो क्यों पता चलता था? क्योंकि पहले हज पर लोग पैदल जाया करते थे या पानी के जहाज पर 6 महीने 8 महीने सफर करके जाया करते थे। वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी, इसीलिए सबके घर जाकर रो रो कर माफी तलब करके, सबसे माफी मांगकर फिर वो हज पर जाया करते थे। आने की कोई गारंटी नहीं थी। इतनी मेहनत करके बंदे हज किया करते थे, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ है। कितनी मशक्कत देखें। पानी का जहाज कब से आसान हुआ? जब से कश्ती बनी। लेकिन जब कश्ती नहीं थी तो लोग कैसे हज पर जाया करते थे? जब हज पर पैदल जाया करते थे, ऊंट पर जाया करते थे, जानवर पर जाया करते थे, तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं। कितने जानवर बीच में लोगों को खा लेते थे, पता भी नहीं चलता था। कितने डाकू लूट लेते, पता भी नहीं चलता था। इतनी मशक्कत मेहनत करके हज पर जाया करते थे, कोई गारंटी नहीं कि वो हज कबूल होता है कि नहीं होता है। लेकिन एक गरीब जो रात का खाना खाता है, कोई गारंटी नहीं कि वो सुबह का खाना उसको मैसर होता है या नहीं, और वो वालिदैन की तरफ मुस्कुराकर भी देखता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मकबूल हज का सवाब अता करता है। दिस इज द ब्यूटी एंड दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ इस्लाम, माशाअल्लाह। तो 5 पिलर्स में 2 ऑप्शनल, जरूरी नहीं। पैसे अगर अल्लाह दे तो हमें जाना जरूरी है। तो मैंने ये बात आपको इसलिए सब एलॉबरेट करके बताया क्योंकि जो टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो स्प्रेड हुआ है ना पूरी दुनिया में, वो सोशल मीडिया के जरिए से नहीं हुआ है, वो गूगल के जरिए से नहीं हुआ है, वो जीमेल के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से, पोस्टल कार्ड्स के जरिए से नहीं हुआ है। फिर तो कैसे हुआ है? घर घर तक कैसे पहुंचा है? मणिपुर जैसे हिंदुस्तान के कोने के हिस्सा, इस कॉर्नर में यहां तक कैसे पहुंचा है? ओनली बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर की वजह से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैरेक्टर दिखाया है, तो उस कैरेक्टर के साथ हमें जीना और मरना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी कंपेनियंस थे, सहाबी किसको बोलते हैं? जो ईमान की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखते हैं, वो सहाबी से वो अवार्ड मिला है। ईमान की हालत में जो अपनी आंखों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, वो सहाबी है। तो सहाबी का कहना यह है कि हमने कई दफा कोशिश की कि इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मैं सलाम करूंगा, लेकिन जिंदगी में कभी हम सलाम नहीं कर पाए। हमेशा पहला सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही किया करते थे। हर दिन हम लोग अपने आप से चैलेंज करते थे कि कल मैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलूंगा तो मैं पहले सलाम करूंगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन हमेशा हार जाते थे। क्यों? पहले पहल कौन किया करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लीडर वही होता है जो पहल करता है, जो भाषण देता है वो लीडर नहीं है। वॉक द टॉक, इंग्लिश में एक फ्रेज है, वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब जो बोलते हो वो अमल भी करना है आपने। ये इस रूह जमी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो कहा है वो अमल करके दिखाया है। उसकी एक जिंदा मिसाल मैं आप सब लोग को देता हूं। तो स्पेशली यंगस्टर्स
یہ بہت ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، بہت تیزی سے لوگ کامیابی کی طرف دوڑ رہے ہیں. 2-3 سال میں پتہ نہیں یہاں کے بچے آکسفورڈ میں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، سٹینفرڈ میں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، ورلڈ کلاس یونیورسٹیز میں نظر آئیں گے آپ کو. کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں ہے کہ منی پور کے بچے آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، منی پور کے بچے سٹینفرڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، منی پور کے بچے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، منی پور کے بچے ناسا میں کام کر رہے ہیں، منی پور کے بچے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں. کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. جس بندوں میں جذبہ ہے، جوش ہے، جنون ہے، پاگل پن ہے، دیوانگی ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن کوئی بڑی چیز نہیں ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو ساتھ میں کیریکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ ورلڈ ریناؤنڈ ڈاکٹر بن گئے لیکن آپ میں دین نہیں ہے، آپ میں کیریکٹر نہیں ہے، آپ میں پیشنس نہیں ہے، آپ میں کمپیشن نہیں ہے، آپ میں ہیوملٹی نہیں ہے، تو پھر آپ اچھے انسان نہیں ہوئے. انسان کو جب غصہ آتا ہے نا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہے انہیں غصہ نہیں آتا ہے. سراسر جھوٹ ہے. اللہ کے ولیوں کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ وہی لوگ کرتے ہیں. غصہ ہر انسان کو آتا ہے، لیکن اس میں قابل انسان، کامیاب انسان کون ہے؟ جو اپنے غصے کو پی جائے اور صبر کا مظاہرہ کرے. غصہ سب کو آتا ہے. صبر کب کرنا ہوتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے نا تبھی تو صبر کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے کہے ابھی کہ آپ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں، آپ ناسا، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، بڑے بڑے یونائٹڈ نیشنز کے لیے آپ کام کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کنٹری کے آپ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں. انگلینڈ میں دیکھیے انڈین اوریجن کا بندہ پرائم منسٹر ہے. کچھ سال پہلے امریکہ میں دیکھیں براک حسین اوباما پریزیڈنٹ تھے. تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر آپ کے کیریکٹر ہیں اور ٹیچنگز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر تو آپ اس روئے زمین کے زبردست لیڈر ہیں. تو یہ کیریکٹر کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہاں جتنے اسکول گوئنگ چلڈرن، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے بہت غور سے سنیں، اور مدرسے کے جتنے طلبہ ہیں جو کل کے اسکالرز بننے والے ہیں وہ تو اور غور سے سنیں مجھے. وہ اس لیے کہ جب اللہ نے کمانڈ آرڈر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دین اپنے گھر میں سپریڈ کیجئے، دین عام کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں فیملی ممبرز میں دین کو عام کیا. پھر کچھ دن کے بعد کمانڈ آیا کہ اب اپنے رشتہ داروں میں دین کو پھیلاؤ، تو رشتہ داروں میں دین کو پھیلایا. پھر اللہ نے ایک کمانڈ دیا کہ جاؤ اب عام کر دو عوام میں، ورنہ چھپ چھپ کر یہ ٹیچنگز امپارٹ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چھپ چھپ کر. لیکن ایک دن آیا، اللہ کا کمانڈ آیا، ابھی چھپنے کا وقت نہیں ہے، ابھی ڈنکے کی چوٹ پر عوام میں جا کر ان ٹیچنگز کو عام کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صفا ماؤنٹن، پہاڑ پر آ کر کھڑے ہوئے اور سارے مکے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور سارے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک سوال کیا، بتاؤ ان دنوں آپ سب مجھے کیسے پائے ہو؟ How did you find me all these days? He put a question to the people. بیک وقت آواز گونجی آسمانوں میں کہ الصادق الامین، سچے اور امانت دار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے،
میں آپ اور ہم سب کو کوئی ٹائٹل ملتا ہے, کوئی تعریف کرتے ہیں, ہم بے پناہ خوش ہو جاتے ہیں. چھوٹا بھی ٹائٹل ملتا ہے, عوام مل کر ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے؟ پھر سے ایک کوشچن کیے, اگر میں کہوں پہاڑ کے اس پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور آپ پر وار کرنے کے لیے, اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے, کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ پھر سب ایک آواز میں بولے ہیں, ہاں ہم یقین کریں گے, آپ کی مبارک زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے, آپ سچے ہیں. دشمن اسلام بھی اس بات سے راضی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین تھے, یعنی سچے اور امانت دار تھے. تو یہ جو ٹائٹل ہے نا الصادق الامین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ٹائٹلز ہیں. اس کے بعد آپ نے بات رکھی, اللہ کی بات. حالانکہ سب سے پہلے کیا رکھنی چاہیے تھے؟ اللہ کی بات رکھنی چاہیے تھے نا. اللہ کا کمانڈ آیا تھا کہ جاؤ میری بات رکھو عوام میں, تو سیدھے اللہ کی بات نہیں رکھی. پہلے اپنے آپ کو پیش کیے کہ میں سچا ہوں, میں آنیسٹ ہوں, میں امانت دار ہوں. پہلے اپنے ذات کو رکھا. کیا رکھا بتائیں؟ سب بولیں, زور سے بولیں, آواز نہیں آ رہی بھائی, آواز میں بولیں سب لوگ. اپنے ذات کو رکھا, پھر اس کے بعد بات کو رکھا. ذات کیریکٹر کو کہتے ہیں. اپنے کیریکٹر کو پریزنٹ کیا کہ میں کیسا ہوں, یعنی پبلک سے دل جیتا. سارے لوگ اکٹھا مان لیے کہ آپ سچے ہیں, کبھی جھوٹ نہیں کہا آپ نے. پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو رکھا. آج کوئی ایم ایل اے, کوئی ایم پی, کوئی منسٹر, کوئی پرائم منسٹر کھڑے ہو کر ایسا دل جیت سکتا عوام کا کہ کیا آپ کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے, کیا کبھی میں نے دھوکہ دیا ہے, کیا کبھی میں نے جھوٹا وعدہ کیا ہے؟ کوئی منسٹر بول سکتا ہے یہ؟ عوام کھڑے ہو کر گنائے گی, آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اس الیکشن کے کیمپین میں, ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے. اس روح زمین کے ایک لوتے لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اپنے کیریکٹر کو پریزنٹ کیا, پھر اس کے بعد میں ریلیجن کو لے کر آیا. تو ریلیجن سے پہلے کیا رکھا؟ کیریکٹر کو رکھا. تو کتنا امپورٹنٹ سمجھو اس بات کو, جو میں جذبے سے کہہ رہا ہوں نا, یہ بات سمجھے. اگر یہاں کوئی عالم بننا چاہتا ہے, اسکالر بننا چاہتا ہے, تو عالم اسکالر بننے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا, دو چیز آنا ضروری ہے. ایک عالم کو دو چیزیں ہوتی ہیں, دو سکلز ہوتے ہیں عالم کے پاس. ایک کیا ہے؟ قرآن کو سمجھتے ہیں, اور دوسرا قرآن کو سمجھاتے ہیں. لیکن ان سکالرز کو بھی یہ بہت ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے کیریکٹر کو صاف رکھیں, اپنے کیریکٹر کو بہتر کریں, پھر اس کے بعد میں ٹیچنگز آف اسلام کو سپریڈ کرنا شروع کریں. ہر ایک سکالر کو, ہر ایک بندے کو سب سے پہلے اپنے کیریکٹر پر کام کرنا ہے. آپ کا کیریکٹر اگر کلین ہے تو جو جو کام آپ کریں گے اس میں اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ. ورنہ ہم کئی دعائیں کرتے ہیں اور قبول بھی نہیں ہوتی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری بات کیوں نہیں مان رہا ہے. ہم نہ جانے ہماری نیتوں میں کتنی کھوٹ ہے. آج بھائی بھائی کی نہیں جمتی ہے, بھائی بہن کی نہیں جمتی ہے, دوست دوست کی نہیں جمتی ہے. پارٹنرز بزنس شروع کرتے ہیں, 2 سال بزنس نہیں چل پاتا ہے. آپس میں کتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور پھر ہم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک قابل قبول عمل نہیں ہے. نماز بھی پڑھنا ضروری ہے, لیکن کیسی نماز؟ دل کو صاف کر کے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے.
आप सब लोग, हम सब लोग वजू बनाते हैं नमाज से पहले, यस और नो? अपने हाथ धोते हैं, अपने पैर धोते हैं, अपना चेहरा धोते हैं और वजू हमारा हो जाता है। फिर हम खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। बिना वजू मैंने कभी जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी और मुझे यकीन है यहाँ जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपने भी बिना वजू कोई नमाज नहीं पढ़ी होगी। कोई है यहाँ कि वक्त निकल जा रहा था इसलिए मैंने नमाज पढ़ लिया? नहीं, वजू करते ही करते हैं आप। लेकिन एक वजू वो भी होता है जो वजू से पहले वजू बनाना होता है। वो वजू में पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वो वजू में नीयत की ज़रूरत होती है। वो वजू बाहर जो जाहिर है वो साफ नहीं करता है, जो दिल में जो मैल है, दिल में जो इन्फेक्शन है, दिल में जो पॉइजन है, वो साफ करना बेहद ज़रूरी है। बेटा बाप से बात नहीं करता है। मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, एक एक महीने के होते हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से बच्चे आते हैं एक महीने के लिए, और जब एडमिशन होता है तो पेरेंट्स, कोई माँ कोई बाप कैबिन में अलग से रोते हैं कि मेरा बेटा 8 साल से मुझसे बात नहीं कर रहा है। अब वो बेटे 10 साल 15 साल के बच्चे इतना सता रहे हैं, तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। वही 15 साल पहले जब हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई, खुशी का ठिकाना नहीं था। इतना खुश हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे तो बड़े बड़े उलमा के पास जाकर दुआएं करवाए थे कि हजरत 4 साल हो गए शादी के, घर में बच्चा नहीं है, दुआ करें। कहाँ कहाँ जाकर दुआ करते थे। उसके बाद एक लड़का हुआ, फिर ऐसे खुश हुए आप, मिठाई बांटने लगे, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वही लड़का जो 15 साल के बाद खून के आंसू रुलाने वाला बन गया। क्यों? ये जो जमाना सोशल मीडिया का है, जो 20 साल 25 साल में जाकर गुनाह किया करते थे नौजवान बच्चे, आज 10 साल की उम्र में कर रहे हैं। जो 25 साल की उम्र जाकर तब जो गुनाह होते थे, इतना एडवांस हो गया जमाना, वो 10 साल की उम्र में बच्चे वो सारे गुनाह कर रहे हैं। और वालिदा मोहतरमा समझती हैं कि मेरा बच्चा बड़ा मासूम है। वालिद समझता है कि तो इसकी उम्र ही क्या है, लेकिन वो 10 साल की उम्र में वो वालिद ने जितने गुनाह नहीं किए होंगे वो सारे गुनाह कर डाले उसने। क्यों? आसान हो गया है गुनाह करना। एक दौर था गुनाह करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। एक कोई मूवी देखना होता तो बड़ा ऐब माना जाता था थिएटर में जाकर। वालिद को पता चल जाए तो फिर घर में पिटाई होती थी। कोई भी उर्दू मूवी, हिंदी मूवी अगर देखना होता, इंग्लिश मूवी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे क्योंकि गंदगी दिखाई जाती है इंग्लिश मूवीज में। और बड़े बड़े लोग आते, उसमें स्कूल के बच्चे जाने डरते थे क्योंकि वालिद का कोई दोस्त, महल्ले का कोई आदमी देख ली थिएटर में, फिर तो मेरा कोई खैर नहीं है। लेकिन आज 8 साल के बच्चे भी ऐसे गंदी सारी चीजें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। तो गुनाह करना इतना गोया आसान हो गया। पानी पीना मुश्किल है क्योंकि आपको कुर्सी से खड़े होकर 4 कदम चलकर, फ्रिज का दरवाजा खोलकर, बोतल निकालकर, फिर उसका ढक्कन खोलकर आपको अपना चेहरा ऊपर करके पानी पीना है। यानी कम से कम 10-15 अलग अलग चीजें कर रहे हो आप। लेकिन गंदी चीज देखने के लिए आप सोफे पे बैठे हो, हाथ में फोन है, ऐसे बटन दबाया, गंदी चीज आपके सामने। पानी पीना मुश्किल है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं आपको पानी पीने के लिए। लेकिन जिना करना इतना आसान कर दिए लोगों ने, दुश्मन इस्लाम ने, कि 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा गुनाह देख रहा है। और ये गुनाह कैसे हो रहे हैं आपको पता भी नहीं चल रहा है। दीनी घराना है, मेरा बच्चा कुछ नहीं देखता है। मेरा बच्चा ना गाने देखता है, ना गाने सुनता है, ना डांस देखता है, ना डांस करता है।
बस मेरा बच्चा थोड़ी देर क्रिकेट मैच देखता है। क्रिकेट मैच भी जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था पहले 1990s में, लेकिन अब देखें आप क्रिकेट में जो जिना दिखाया जा रहा है, स्पेशली आईपीएल मैच, जब कोई बंदा बाउंड्री लगाता है या सिक्सर लगाता है तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर नंगी औरतें आकर नाचती है, तो वो घर में माँ बाप भाई बहन बैठकर सब लोग देखते हैं। बाप की नजर गंदी नहीं है, बाप तो ऐसा ही क्रिकेट की तरह ही देख रहा है, उनकी नजर कहां जाती है? तो दुश्मन इस्लाम ने इतनी कोशिश की है कि घर घर में जिना लाया जाए, आसान कर दिया गया जिना को। यानी इस जमाने में अगर कोई जिना से बच रहा है, गंदी चीजों से अपनी आंखों की हिफाजत कर रहा है, मैं आलिम दीन तो नहीं हूं, लेकिन मुझे अगर इजाजत मिलती है कुछ कहने के लिए तो मैं कहूंगा कि आज के दौर का वो नौजवान जो है ना, जो अपनी आंखों की हिफाजत करता है, वो वली है इस दौर का। इस दौर का वो वली है अगर वो अपनी आंखें नीचे रखता है, अपनी आंखों की हिफाजत करता है। हिजाब तो लड़कियों के लिए आया है, लेकिन कुरान में सबसे पहले कमांड मेल्स को आया है। किसको? मेल्स को। अपनी आंखों को, अपनी नजरें नीचे करो, लोअर योर गेज। लेडीज गर्ल्स को तो बाद में है, सबसे पहले किसको आया कमांड? मुझे, आपको, हम सबको आया है, लोअर योर गेज। यानी क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि इन गुनाहों से बचो। अब क्रिकेट के नाम पर, क्रिकेट के नाम पर कितने गुनाह हो रहे हैं पता भी नहीं चल रहा है, मालूम भी नहीं हो रहा है आपको। इस तरह से कोशिशें हो रही हैं। टेक्नोलॉजी से बहुत चीजें सीख सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग a certain role to damage your character as well. So here you need to understand how to use the technology, how to use mobile phones. It's a small piece in your hand, but it can damage your character, your personality, your whole career. At the age of 10, children are being given mobiles in their hands. And while Maulana Abul Kalam Azad, when he was 12 years old, he established library at home. You go to every house today and meet the children of 12 years old and ask them if they have library at home. They have laptops, they have mobiles, they have computers, they play computer games, but they don't have libraries. Children today, they know where McDonald's is, where KFC is, where theaters are, where parks are, where grounds are, but children never know where libraries are. At the age of 12 itself, Maulana Abul Kalam Azad established a library at home. And see, after a couple of decades, he became the education minister of India. बचपन आप कैसे गुजारते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका करियर कैसे बनने वाला है. It totally depends on your childhood days. How you spend your childhood days depends how you are going to live your entire life. If you spend your childhood days just watching movies or browsing on internet, then you are not going to do wonders in your life. If you really want to do wonders in your life, then you need to understand certain things. The very first thing is to abstain from sins. In fact, it is one of the best forms of worship. गुनाहों से बचना बेहतरीन इबादत है. हम लोग इबादत किसको समझते हैं?
सर्दियों में जागकर ठंडे पानी से वजू बनाकर फज्र की नमाज पढ़ना, यह इबादत बिल्कुल है, 100% है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। रमजान का महीना आता है, 30 रोजे रखना ये इबादत समझते हैं, 100% इबादत है, लेकिन यही सिर्फ इबादत नहीं है, इसके बियॉन्ड भी है। वो क्या है? गुनाहों से बचना, to abstain, to refrain from sins is one of the best forms of worship. We may offer namaz 5 times a day. We may observe fast all through the month during Ramadan. If we are blessed with wealth, we may give a lot of charity. And if we are blessed, we may go for Hajj every year. But at the same time, if we are lying to people, if we are deceiving people, if we are threatening people, if we are taking bribe, if we are drinking alcohol, then we are not true Muslims at all. हम जो नमाज पढ़ते हैं वो कबूल होती है या नहीं होती है, ये तो रोज़ क़यामत में सबको पता चल जाएगा। लेकिन अल्लाह ने हर एक इंसान में एक बगैर डिग्री के मुफ्ती को रखा है, सब में एक फैसला। हम लोग सोचते हैं कि अल्लाह मुझे नहीं दे सकता है। अब यहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है, इतनी ज़मीन मुझे चाहिए, मुझे यकीन नहीं है अल्लाह पे कि अल्लाह मुझे दे सकता है, इतनी बड़ी ज़मीन तो नहीं मिलने वाली मुझे। यहाँ जो मैं आया हूँ मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब के साथ में, वो अभी कुछ देर में आएंगे इंशाअल्लाह। उनके वालिद साहब मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब, long ago I believe 2 decades ago, he visited this place and I got to know that he stayed here for about 4 days. In 1992 or 1995, he came here. He was born in a small village named Vastan, and he used to travel from places to places to offer Jummah khutbah. And he reached one place that is very... In 1980, he had nothing. But today, after 4 decades, if I talk about him, I can say he has established 7 दीन ने 10-10 एकड़ की जमीन ले ली है। मुबारक जुबान से बस निकलना है, इंटेंशन होना, अल्लाह से ऐसे ताल्लुक बनाओ, have firm confidence in Allah subhanahu wa ta'ala, then you are going to get it. हम लोग 100 तो कुछ पल के लिए रखते हैं, 100% confidence 24 hours a day, all through the week, all through the month, all through the year हमें रखना है। तब अल्लाह की वो अज़मत, वो बरकत, वो रहमत, वो तमाम चीज़ें नाज़िल होंगी इंशाअल्लाह। कामयाबी जो दुनियावी लाइन से अगर आप पाना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, फुटबॉलर बनना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, एक दिन 24 घंटे उसी लाइन पर आप काम करें, कामयाबी नहीं मिलने वाली है। मेहनत आपको रोजाना करना है, लंबे समय तक करना है, तब जाकर कामयाबी मिलेगी। अच्छे लाइन में हो या बुरे लाइन में हो, डाकू बनना है, डॉन बनना है पूरे कंट्री का, वर्ल्ड का, तब भी आपको सालों रोजाना मेहनत करना है। मैं 1 हफ्ता करूंगा फिर 3 हफ्ते छुट्टी लूंगा, आप डाकू डॉन नहीं बन सकते। आपको 365 दिन काम करना पड़ेगा। आपको वर्ल्ड टॉप रिनाउंड, वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आप 1 हफ्ता पढ़ेंगे और 3 हफ्ता नहीं पढ़ेंगे, यू कैन नॉट डू दैट। 90% लोग क्या चाहते हैं पता है आपको दुनिया में? वो चाहते हैं कि उन पर लोग हुकूमत करें, उन्हें उल्लू बनाएं, उन्हें धोखा दें। ये हम चाहते हैं। अगर कोई उल्लू बन रहा है ना, तो वो खुद चाहता है कि उल्लू बने, इसलिए उल्लू बनाया जा रहा है उसको। आप अगर दानिश्वर हैं, होशियार है, तो आप उल्लू नहीं बनेंगे,
इंसान उल्लू कब बनता है? when he is not prepared, when he has no knowledge of the subjects. जब उसको इल्म नहीं होता है उसका, तभी ना वो उल्लू बनता है. अगर उसके पास में इल्म होता है, नॉलेज है, विजडम है, एक्सपीरियंस है, तो वो लोग कभी धोखे में नहीं आते हैं. तो मैं बात कर रहा था कि इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं दुनिया में, वो सिर्फ 10% ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो 90% लोग हैं, उनमें से भी कई सारे लोग हैं जो कामयाबी की चोटी तक जा रहे हैं. They are able to go to the heights. They have reached the culmination of success. They have reached the pinnacle of success. How? कैसे? वो इंटेलिजेंट नहीं है, वाइज नहीं है, फिर भी they are able to do wonders in their lives. How come? With thorough practice and consistency. अपने प्रैक्टिस और पैशन में कंसिस्टेंसी होती है. जितने भी लोग नीट क्रैक कर रहे हैं, यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, तो ये जो बंदे जो क्रैक करता है जाकर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप 50 साल को बर्बाद कर रहे हो थोड़ी खुशी के लिए. इंटेलिजेंट इंसान कौन होता है जो 50 साल के लिए काम करे? असल उनमें से भी आला इंटेलिजेंट वो होता है जो आखिरत के लिए काम करे. बट यू हैव एब्सोल्यूट राइट टू अर्न मनी, टू अर्न फेम, to do wonders on this earth. For that you need to avoid certain things. आपको कुछ चीजें अवॉइड करना जरूरी है अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो. करियर जो डैमेज हो रहा है ना, उसमें मेजर रीजन है मोबाइल फोन. 70% जो रीजन होता है ना, बंदा नाकाम हो गया है. मैं हमेशा कहता हूं यंगस्टर्स से, आप जाकर देखें कि आपके खानदान में 40 to 50 इयर्स के कितने बंदे हैं. उनसे पूछें कि हाउ इज योर लाइफ. आपको चैलेंजेस ही मिलेंगे, प्रॉब्लम सुनने को मिलेंगे. ये जो वक्त से गुजर रहे हो आप, ये गोल्डन पीरियड है आपकी जिंदगी का. आपने कभी मूवीज में देखा होगा, जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसको मैकडॉनल्ड्स लेकर जाते हैं, या स्टेडियम में लेकर जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल में लेकर जाना होता है. वेयर इज ही टेकन? हॉस्पिटल. इफ एनीबडी हैज पेन इन द चेस्ट, विल दे बी टेकन टू एनी ग्राउंड और पार्क और होटल और रेस्टोरेंट और हॉस्पिटल? It is quite obvious. When somebody has pain in their chest, they will be taken to hospitals. और डॉक्टर्स को कहते हुए आपने देखा होगा, सुना होगा, जरा भी देर करते तो जान जा सकती थी. कभी सुना आप लोगों ने ये? पहला जो आधा घंटा होता है स्ट्रोक के बाद, फर्स्ट हाफ एन आवर, उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं. कौन सा पीरियड कहते हैं? गोल्डन पीरियड. उसमें जो भी ट्रीटमेंट होता है, रिकवर होने के चांसेस बहुत होते हैं. वो आधे घंटे के बाद वाला जो ट्रीटमेंट होता है, उसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट है ज्यादा. आप समझ रहे हो नौजवान बच्चों? अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो पहले आधे घंटे में अगर उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है तो रिकवर होने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं. और हाफ एन आवर के बाद जो ट्रीटमेंट होता है, उसमें रिस्क का बहुत इन्वॉल्वमेंट है. और वो फर्स्ट हाफ एन आवर का नाम क्या है? गोल्डन पीरियड. ये जो जवानी है ना आप लोग की, 15 से 25 साल की, ये गोल्डन पीरियड है. इसमें आपको वही चीज करने में मजा आता है जो आपके पेरेंट्स मना करते हैं. वही चीज करने में मजा आता है जो आपके टीचर्स मना करते हैं. वही चीज करने में मजा आता है जो उलमाए दीन मना करते हैं. वही चीज करने में लज्जत है जो एल्डरली पीपल आपको मना करते हैं. 4 एग्जाम्पल दिए मैंने.
पेरेंट्स, टीचर्स, स्कॉलर्स, एल्डरली पीपल। प्यारे बच्चों, ये चारों मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये लोगों ने जिंदगी देख रखी है, तजुर्बेकार हैं, they are experienced, they have seen their lives, they have seen failures in their lives, they have struggled a lot, and they are trying to help you out. They want to reach you, they want to convince you, do not do the things which we have done in the past. We are experienced people, listen to us. But today the youth, they are not in a situation. They turn deaf ears. All their requests falling on deaf ears today. लेकिन जो youngsters बातों को अनसुनी कर रहे हैं, वो 20 साल के बाद पछताने वाले हैं. They are going to repent later. So wise is the one who understands today. आप में से इंटेलिजेंट कौन बंदा है जो अपने करियर के इंपॉर्टेंस को आज समझता है? आप जब 25 साल की उम्र में जाओगे, 30 साल की उम्र में जाओगे, तब करियर सबको समझ में आ जाता है. एक बीवी, 4 बच्चे जब आ जाते हैं, करियर सबको समझ में आ जाता है. एक बीवी, जो यंगस्टर्स कितना भागते हैं लड़कियों के पीछे. कॉलेजेस, दे गर्ल्स कॉलेज में जाएं, you see hell lot of youth today are going around the girls colleges. They are spending a lot of time at girls colleges. They love to spend time, in fact. अपना पूरा वक्त गर्ल्स कॉलेजेस के पास में बिताना और एक अच्छी लड़की को तलाश करना, अच्छी लड़की से इश्क करना, अच्छी लड़की से, खूबसूरत लड़की से शादी करना, ये नौजवानों का सबसे बड़ा मिशन है आज के दौर में कि मेरे 5 गर्लफ्रेंड्स होने चाहिए. बच्चे देखो कैसे खुश हो रहे हैं. अब उनकी टॉपिक पर अब आया हूं ना मैं. जब से जो रोना रो रहा था मैं, वो वालिदैन का दर्द था. जब इनकी टॉपिक आई तो ऐसी खुशी आ गई है कि मुझे 4 गर्लफ्रेंड्स चाहिए, मुझे 5 गर्लफ्रेंड्स चाहिए. तेरे कितने हैं? 3. ठंडा है तू. मेरे फोन में देख, 25 तो इंस्टाग्राम पे ही है. मरते मुझ पर, जलेगा जहन्नुम में कल तू. आज वो लड़कियां मर रही हैं, कल जलेगा जहन्नुम में. खूबसूरत लड़की से शादी करना आज नौजवानों का एम हो गया है, एम्बिशन हुआ है. शादी तो कर लेते हैं, 1 हफ्ता खुश रहते हैं, उसके बाद वो ही नचाएगी. बच्चे हो जाएंगे, फिर स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं होते उसके पास, कोई पिकनिक ले जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं. Children love to go on picnics, but father has no amount in their pockets. Children love to study at big schools. They want to pursue their graduations at Oxford University, at Harvard University, but parents have no bank balance. क्यों? जवानी में आपने अपने करियर को बनाना था, आप लड़कियों के पीछे भाग रहे थे, आप मोबाइल्स के पीछे थे, आपका वक्त कहां गुजर रहा था? तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको गोल्डन पीरियड का. हार्ट अटैक जब आता है, पहला आधा घंटा बहुत अहम होता है ट्रीटमेंट का, उसे गोल्डन पीरियड कहते हैं. उस गोल्डन पीरियड में अगर मेडिसिन मिलती है उसको, तो उसकी जान बचने के चांसेस ब्राइट होते हैं. तो ये जो आप टीनेज से गुजर रहे हो ना, 13 से लेकर 19 तक, ये जो टीनेज की उम्र होती है, ये गोल्डन एज है, ये गोल्डन पीरियड है. इसमें अगर नौजवान बच्चे गुनाहों से बचते हैं, वो कल के डॉक्टर APJ कलाम साहब बनेंगे, वो कल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनेंगे, वो कल के साइंटिस्ट बनेंगे, वो कल के IAS ऑफिसर जो आज यहाँ पर बैठे हैं, वो कल के IAS IPS ऑफिसर्स बनेंगे. गुनाहों से बचना वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ वर्शिप. ये बेहतरीन इबादतों में एक इबादत है, गुनाह से बचना. आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाजी बोलते हैं, आप जिक्र करते हो तो जाकिर बोलते हैं, बहुत जिक्र करता है. लेकिन याद रखें, एक वो भी अमल है
जो करने से इंसान में तक़वा आता है। तक़वा नमाज पढ़ने से नहीं आ रहा है, कुरान पढ़ने से नहीं आ रहा है, हज करने से नहीं आता है। आप नमाज भी पढ़ रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, आप मुत्तकी हो सकते हो? नमाज भी पढ़ रहे हो, शराब भी पी रहे हो, मुत्तकी हो सकते हो? नमाज पढ़ रहे हो, तिजारत कर रहे हो, कस्टमर्स को धोखा दे रहे हो, मुत्तकी हो सकते हो? नहीं, सवाल ही नहीं है। नमाज पढ़ते हुए झूठ नहीं बोलना, नमाज पढ़ते हुए जिना नहीं करना, नमाज पढ़ते हुए धोखा नहीं देना, नमाज पढ़ते हुए गुनाहों से बचना, तो उनमें क्या डेवलप होता है? They develop piety in them, and it is one of the best forms of the worship. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, गुनाहों से बचना एक बेहतरीन इबादत है, लेकिन हम लोग इबादत को कन्फाइन कर रहे हैं. We have confined Islam to the 5 pillars. Beyond 5 pillars there are many great things, and we youth today are not able to understand the beauty of Islam. I urge all the youngsters here, try to avoid using mobile phones. Use it to the limit. Use it accordingly when it is really needed. You may see your friends across you spending a lot of time on mobile phones, and you may even think they are really enjoying the world and you are deprived of the pleasures. But believe me, after 10 years you're going to see they are searching for jobs, and you're working for a multinational company as a director or as a brand ambassador of a big company. You may see, sometime you may even see your friend is driving auto and you are being driven in that auto. ऐसा भी वक्त आ सकता है कि आज यार थे आप लोग, खूब एंजॉय कर रहे थे, एक खूब पढ़ाई करता था, एक खूब खेलता था, मस्ती करता था, और वो जाकर मैनेजर बन गया कोई कंपनी का, और आप जाकर ओला उबर की गाड़ी चला रहे हो. आप कार में आकर बैठे तो अचानक सामने वो उबर चला रहा है और ये सूट बूट पर एज ए मैनेजर बैठा है, तो उसके आंख में आंसू नहीं आएंगे कि हम लोग एक छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे, एक होटल में हमने चाय पी है, एक ग्राउंड में हमने फुटबॉल खेला है, जिंदगी के 20 साल हमने साथ में गुजारे. आज ये 5 लाख कमा रहा है, मैं 10,000 कमाने के लिए तड़पता हूं दिन भर. क्यों? उसने जवानी सही गुजारी थी और तूने जवानी बिगाड़ी अपनी. याद रखें, 3 दोस्त होते हैं हर एक के. क्लास में होते तो 40 बच्चे हैं, लेकिन 3 से ही दोस्ती होती है. अक्सर जो वक्त हम गुजारते हैं वो 3 से, वो 3 बच्चों पर ही डिपेंड करता है आपका पूरा 50 साल का करियर. अगर आपके 20 साल हैं तो और 50 आपने जीने हैं. आपके वालिदैन, आपके वालिद शेखुल हदीस हो सकते हैं, आपके टीचर्स दुनिया के बेस्ट टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन आपके फ्रेंड्स अगर अच्छे नहीं हैं, एम्बिशियस नहीं है, तो समझ जाएं कि आपका करियर डैमेज होने वाला है. सोबत बहुत बड़ी चीज होती है, कंपनी बहुत बड़ी चीज होती है. इसीलिए इंग्लिश में कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स. कंपनी यानी साथी, वो कंपनी नहीं जो तिजारत बिजनेस करते हैं. लेकिन आज के जमाने में मैं कहता हूं, अ मैन इज नोन और ए यंगस्टर इज नोन बाय द हेयर कट ही कीप्स. हेयर कट से मुझे वो यंगस्टर के बारे में तो पता ही चल जाता है, उसके अलावा उसका वालिद की कैसी तरबियत है ये भी मालूम हो जाती है मुझे. एक कटिंग का नाम है चूहे तवाफ कट. कौन से कट है? चूहे तवाफ कट. यानी चूहे तवाफ करते हैं तो यहाँ के बाल पूरे चले जाते. चूहे ऐसे ऐसे खाते हैं ना चीजें. आप देखें 10 में 5 बच्चों के ये बाल नहीं रहते, और यहाँ पे घोंसले होते हैं, ऐसे बड़े बड़े घोंसले. किसी के बाल उधर नॉर्थ में, किसी के ईस्ट में, किसी के साउथ में, किसी के वेस्ट में, अजीब अजीब. उसमें फिर रेनबो के एशियन पेंट्स, और वो जीन्स फाड़ लेके. एक जमाना था
फटे हुए कपड़े को सी सी कर पहनते थे, आज सिले हुए कपड़े को फाड़ फाड़ कर पहन रहे हैं। ये दौर आ गया। खुशी भी हो रही नौजवानों को, अफसोस करने की बात है, ये खुश हो रहा है। हजरत शायद आए हैं। हाँ जी, एक छोटी सी बात मैं कह के बात ख़त्म करता हूँ ताकि हजरत की कुछ बातें आप सुने, दुआएं लें। Such a great scholar of India, mashallah. His father is the first Indian scholar who has established a medical college, mashallah. पहले आलिम दीन है पूरे इंडिया के जो मेडिकल कॉलेज कायम किए। एक स्कूल एस्टैब्लिश करने पापड़ बेलना पड़ता है, परमिशंस नहीं मिलते हैं। मेडिकल कॉलेज तो हरक्यूलियन टास्क है, हरक्यूलियन टास्क, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। But mashallah, man with beard and cap on head, with kurta pajama, he is doing wonders. और आपके साहिबजादे जानशीन विजनरी स्कॉलर यहाँ पर हैं, कुछ आप प्यारी बातें उनसे भी सुने, सीखें, दुआएं लें। He is on a mission to bring a change in India. He is on a mission to see the youngsters, especially the students of madrasa, to hold Quran in one hand and technology in another hand. This is the ambition of Maulana Huzaifa Bastanvi Sahab, and I have associated with young dynamic visionary scholar. Youngsters को मैं कहता हूँ, और बिलखुसूस ये लाइव शायद दिखाया भी जा रहा है, तो यहाँ जितने बंदे हैं वही नहीं देख रहे हैं मुझे। हो सकता है सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत से यंगस्टर्स, लड़के और लड़कियां भी मुझे देख रहे हैं। एक चीज़ मोबाइल से दूर रहना है आपने, और दूसरी चीज़ लेजीनेस। मैंने मौलाना से कहा था कि यहूदी हमारे दुश्मन बाद में है, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी सुस्ती। हम इतने लेजी होते हैं, हर चीज़ कल पर टालते हैं। कोई चीज़ आज करना है तो हम उसे कल पर टालते हैं। इसमें भी यहूदी की चाल है। आप बताएं, अज़ान हो रही है, नमाज के लिए आप नहीं जाग रहे हो, यहूदी की कोई कंस्पिरेसी है? नहीं नहीं भाई, वो हर चीज़ में यहूदी की चाल है, दुश्मनों की चाल है, क्रिश्चियंस की चाल है। कुछ भी चाल नहीं है, लिमिट है उनकी चाल में, 100% नहीं है। हम पर डिपेंड करता है। उनकी चाल है तो हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स है, तो वजनदार तो हमें होना है ना फिर। लेकिन हम क्यों ढीले पड़ जा रहे हैं? सुस्ती की वजह से, लेजीनेस की वजह से। वी ट्राई टू पोस्टपोन थिंग्स। हम लोग कल पर टालते हैं, कल से करूंगा। याद रख लें, जो कल से करूंगा कहता है वो जिंदगी में वो कल नहीं आने वाला है। जो भी करना है आपने आज से करना है, अब से करना है, और यहीं से करना है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मानो के आप में से कोई बंदा सिगरेट पी रहा है खूब, और मैंने लेक्चर दिया है सिगरेट पर, और आपने नियत कर ली है कि मैं कल से बंद करूंगा। बिलीव मी, यू आर नॉट गोइंग टू सी दैट टुमारो एवर इन योर लाइफ। वो कल कभी नहीं आने वाला है। आपने आज से बंद करना है, अब से बंद करना है, यहीं से बंद करना है। ये लो मैं निकालता हूं डिब्बी सिगरेट की, आपने उसको क्रश किया और फेंक दिया। यही इतिहास रचते हैं। जो स्पॉट पर डिसीजंस लेते हैं यही लोग बड़ा करते हैं अपने जिंदगी में, वरना जो टालते हैं कल पर परसों पर, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते हैं। मोबाइल से दूर रहना और लेजीनेस से बचना, तो फिर आप कामयाब होने के चांसेस आपके ब्राइट है। और एक यंगस्टर्स को मैं मैसेज देना चाहता हूं, जो तीसरी चीज में यंगस्टर्स जो तबाह हो रहे हैं वो इश्क में। लड़का लड़की अट्रैक्ट होते हैं, अब उसमें पूरी जिंदगी। ऐसे बच्चों को देखा मैं, 95% है उसके 10th में, लेकिन कॉलेज में गया, खूबसूरत लड़की को देखा, अजीब अजीब कपड़ों में आ गई है, खलास उसकी चाल में उसने फंसा लिया, पूरी जिंदगी खराब हो गई। 10th तक वो बच्चा इतना स्टूडियस, 98% वालिदैन यकीन नहीं करते हैं कि मेरा बच्चा लड़कियों के इतना दीवाना हो सकता है। हो रहे हैं, क्यों? अजीब अजीब ड्रेस पहनकर,
लड़कियां फंसा दिए, खलास गया काम से, पूरी जिंदगी 50 साल उसके तबाह हो गए। और कुछ लड़कियां लड़कों के चक्कर में आकर अपना पूरा करियर तबाह कर लेते हैं। अच्छे घराने के लड़कियां हैं लेकिन ऐसे गंदे बच्चों की सोबत में आ गए, पूरी जिंदगी तबाह। आप सिटीज में जाएं, कॉलेजेस के, गर्ल्स कॉलेजेस के गोल तवाफ करते हुए नजर आएंगे आपको बॉयज। अब कोई लड़की का 4 बजे कॉलेज छूटा, अब एक लड़का आ रहा है बाइक लेकर, अब वो आवाजें कर रहा है, व्हीलिंग कर रहा है, अब वो लड़कियां निकल रही हैं, अब ऐसे ऐसे देख, ऋतिक है, ऋतिक जान इब्राहिम, अब वो चीज, अब वो बेचारी उसमें से कोई ऐसा देखती है, अब खलास वो देखना क्या हुआ, दूसरे दिन फिर और तैयार होके आएगा वो। अब जैसे तैयार होके आता है, अब वो नंबर एक्सचेंज करने का शुरू हो जाता है। अब वो नंबर एक्सचेंज करके कोई होटल जाते हैं, पार्क जाते हैं, फिर जिना होता है, फिर कुछ शादियां होती हैं, कुछ शादियां नहीं होती हैं। लेकिन वो बिचारी को क्या मालूम, वो समझती बिचारी कि ये बहुत बड़े खानदान का है, जबकि वो जो गाड़ी चला रहा है वो ना गाड़ी उसकी है, वो जीन्स पहना ना वो जीन्स उसका कोई दोस्त का जीन्स, टी शर्ट कोई दोस्त की है, चश्मा जो लगा लिया वो कोई दोस्त का, सारी चीजें सब उधार के हैं, जाती कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है कि जैसे अंबानी का बेटा हूं मैं, बड़ा रईस घराने से हूं मैं, और वो अच्छे घराने की लड़की फंस जाती है, गाड़ी पे बैठकर लॉन्ग ड्राइव जाऊंगी ऐसे ख्वाब आते हैं, अब गाड़ी पंक्चर हुए, कसम खुदा की पैसे नहीं होते पंक्चर जोड़ने के, उसके साथ बैठ के जा रही है, ओ आई हैव फॉरगॉटन बोलता है। अब वो शादी भी कर लेगा, शादी करके बोला क्या वालिद क्या करते, माय डैड इज रनिंग होटल्स। होटल्स नहीं भाई, कुछ चौराहा पर 2-3 झोपड़ पे चाय भेजता है। आप फंसा के शादी कर ली, पूरी जिंदगी तबाह हो गई बेचारी की। ना मजहब देख रहे हैं, ना घराना देख रहे हैं, लड़कियां जिससे बोले उससे शादी किए जा रहे हैं। पहले जमाने में लड़कियां भी है, सुन लें, शादी होती थी, लड़की के वालिद आकर मोहल्ले में एक घर में नहीं 20 घरों में पूछते थे लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, लड़का कैसा है। एक भी 20 में अगर बोल दे सिगरेट पीता है, खलास रिजेक्ट, मेरी लड़की को मैं नहीं दे सकता। आज सिगरेट पी रहा है, सैलरी अगर मोटी है, ठीक है मेरी बच्ची संभाल लेगी, बंद कर देगी वो आदत, हैबिट। क्या बंद करेगी, 2 दिन के बाद दोनों मिलकर पीते रहेंगे, बेटी भी दामाद भी। ये हाल हुआ है। पहले जो रिश्ते होते थे, कैरेक्टर देखते थे, घराना देखते थे, आज पैसा देख रहे हैं। तो नौजवान बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं, आप लोग अपने कैरेक्टर की अपने हिफाजत कीजिए, अपने करियर को इतनी ऊंचाई तक ले जाएं कि लड़कियों के वालिदैन आपके घर तवाफ करें रिश्ता लेकर, इतना स्टेटस बनाएं अपना कि लड़कियां घर आ जाएं, हजारों लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां। लेकिन वही चीज आप पहले चाहते हो विदाउट कैरेक्टर, तो आपको वैसे ही मिलने वाली है। इल्तिजा करता हूं, अपने कैरेक्टर की हिफाजत करें, अपने करियर को डेवलप करें, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें। यह पहला विजिट है लेकिन आखिरी नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि मौलाना हुज़ैफा साहब यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ मणिपुर में ट्रांसफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन ले आने के लिए हम लोग इंशाअल्लाह हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आप लोग में से कुछ लड़कों को, कुछ लड़कियों को हम लोग हैदराबाद बुलाएंगे, अक्कल कुआं बुलाएंगे, जबरदस्त ट्रेनर्स बनाएंगे इंशाअल्लाह, और वही ट्रेनर्स यहाँ मणिपुर में काम करेंगे। और मेरी इस बात को याद रख लें सब लोग, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में दुनियावी उलूम, यानी दुनिया के सारे स्किल्स अगर आपके हाथ में आ जाएं तो आप दुनिया में देने वाले हाथ बनेंगे, आपके लेने वाले हाथ नहीं बनेंगे। आपके हाथ हमेशा ऐसे रहेंगे, हाथ ऐसे नहीं रहेंगे। हाथ ऐसा सिर्फ अल्लाह के आगे ही होना चाहिए, इंसानों के आगे ऐसा कभी नहीं हो। ये हाथ सिर्फ अल्लाह के आगे ऐसे होने,
उसके बाद हमेशा हाथ हमारा ऐसा ही होना है। किताबों से दोस्ती कर लें, करियर बन जाएगा आप लोग का। किताबों में वक्त गुजारें, कल के लीडर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। टुडेज रीडर टुमारोज लीडर, घर में लिख लीजिए ये, टुडेज रीडर टुमारोज लीडर। कोई भी सेक्टर में, कोई भी फील्ड में लीडर बनना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट के बुक्स को लीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए, खूब स्टडी कीजिए, उस पर्टिकुलर फील्ड के आप लीडर बनेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ आए हुए तमाम तलबा, दूर दूर से जितने भी स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, madrasa people, those who have turned up today, wholeheartedly thankful to you all wonderful people for listening to me. Despite having infection in my throat, I have come here. I could not say no to Maulana Huzaifa Sahab. Otherwise, कल और परसों जो इन्फेक्शन था, मेरे घर में मेरे वेल विशर्स मना कर रहे थे कि ये आवाज़ से आप जाकर स्पीचेस दोगे चिल्ला चिल्ला कर और बढ़ जाएगा, फिर आपका 40 दिन का वर्कशॉप है, 500 उलमा को पढ़ाना है, उससे पहले एक हफ्ता आप रेस्ट लीजिए। लेकिन मौलाना की मेहनत को, कुर्बानियों को, आपके वालिद डायलिसिस पर है, आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, उसके बावजूद देश के उस कोने से इस कोने तक आप आए हैं, तो फिर मैं क्या ये छोटी कुर्बानी नहीं दे सकता। इसलिए मैं साथ में आपके यहाँ पर आया हूँ और इंशाअल्लाह ये पहली विजिट है, लेकिन नेक्स्ट 10 इयर्स में मणिपुर अलग रहेगा इंशाअल्लाह। मैं मौलाना हुज़ैफा साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे यहाँ पर ले आया माशाअल्लाह। काम वो जगह करो जहाँ पर काम कम है, यहाँ पर अच्छे स्कूल्स की बड़ी सख्त ज़रूरत है। IAS ऑफिसर बैठे हैं 10 साल से, उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके क्वालिटी को, उनके कैलिबर को नहीं समझ पा रहा है, उन्हें इस्तेमाल करना है। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं ये, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त आ चुका है। वी विल डू इट इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अस्सलाम वालेकुम। मैम कमाइन तौखिगे ngasi khoi manawal jama gi speech sibo khara kan lam tang haibi ma harau na ba amuk ka khara kan na. Okay, thank you so very much Janab Manawar Jama Sahab for giving us or inspiring your so many experience in your life and other field. इकोई हौजिक्सी नमाज असर की मतम दी तसेंगना यौरबने अदुबो सोनबे आबा मतम फावबा खितंग इकोई मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी महाक्सु लैरबनिना हेक्तंग दुआगा लोइनना लोइसिनना बाई कोई असर की नमाज से 4:40 दा पुंग मरी का मिनट निफु दा सोनबा हाइना दुमाइना इकोई ताकपीरई लोइनना मथंग सिदी the purpose of today's function ngasigi tasengna function si add on ni aikoi gi Maulana Huzaifa Wastanvi Sahab ase koi gi convocation hai batare dastar wandi aikoi Darul Ulum Markaz Lilong Haurei bisu hojikti mapung marai pharaba India gi oina Prithvi gi oina aikoi gi theology gi tongan tongan ba laik laisu tambi ba sida Bukhari hadith ki aikoi mioi khara sonba loiba makoi gi okay sure aduna adugi dastar bandi gi Maulana Singh Manipur gi aduga Hufaz Singh pulapna punbagi khudong saba lauraga Janab Manawar Jama Sahab se loina rakhibani tasengna na khitang ithu thuna yamna hasty oiba mongda sinbalang ba tawkhibana maram oira kanda mayam da pen da khara khazik leibiram lagasu madugi damak ta sinjalang jariba Darul Ulum Managing Committee ki maikei dagi miyam da ngakpi nanaba nolukchari loina. Now we have with us हमारे बीच में एक मौलाना साहब है, उसके पिताजी जो गुलाम वस्तानवी साहब के नाम पे
बुलाते हैं, उसकी तारीफ. I was in Maharashtra, मैं महाराष्ट्र में 15 साल था. I was in Pune, and I was working with 3 different companies, and I have heard, मैं बहुत कुछ सुना है अकल कुआ के बारे में, but unfortunately I won't be able to visit once. But alhamdulillah, inshallah, in days to come, I will definitely visit to your campus. And I have seen some of your videos. Last MFERD function में आपके साथ मुलाकात हुआ था, अहमदाबाद. I was there. So अभी मनोज जमात साहब ने अभी बोला कि इंडिया के अंदर मौलाना ने एक ऐसा करके दिखाया कि मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश किया. I have seen, and even I visited Jalna campus through Malegaon. So I know what you have done for the development of, especially on education, in the field of like madrasa and general education. And now we have with us Maulana Huzaifa Wastanbi. He is the CEO, Chief Executive Officer of Zamia Islamia Isha'atul Ulum Akal Kuwa, Nandurbar, Maharashtra. I don't want to stress on what you want to say. आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप आपके सामने रखा हुआ है. आप तशरीफ लाइए और आपकी बात रखिए. माशाअल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदिन व अला आलिहि व मन वाला. काफ़ी देर हो चुकी है और आप भी बहुत देर से बैठे हैं. सर ने कहा इसलिए मैं आपके सामने 5 मिनट के लिए खड़ा हुआ हूँ, वरना मैं भी 1.25 घंटा बोल कर आया हूँ. इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत सारे चैलेंजेस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं. मुसलमान ये कभी मायूस नहीं होता है, क्योंकि कुरान में अल्लाह का ऐलान है कि मायूस होना ये मुसलमान होने की अलामत नहीं है, कि अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है. दुनिया है, हालात आते हैं, मगर मुसलमान उसी को कहा जाता है जो हालात का मुकाबला करता है. दूसरे नंबर पर हमें इन हालात से निकलने के लिए अपने आप को किन चीज़ों से वाबस्ता करने की ज़रूरत है. जब भी किसी कौम के ऊपर हालात आए तो उस कौम को उन हालात से निकालने में सबसे बड़ा रोल नौजवानों का होता है. किसी कौम के नौजवान अगर उठ जाए और वो ठान ले कि उन्हें कुछ करना है, तो दुनिया की कोई ताकत उस कौम को नहीं रोक सकती. अल्लामा इकबाल ने इसीलिए नौजवान को मुखातब करते हुए कहा, तेरे सोफ़े है अफरंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी. कि कैसा मुसलमान नौजवान है हिंदुस्तान का कि उसके सोफ़े अफरंग से, यूरोप से बनकर आ रहे हैं और उसके कालीन ईरान से बनकर आ रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में सारे सोर्सेस मौजूद है, मगर मुसलमान नौजवान दूसरों के हाथ का बनाया हुआ इस्तेमाल कर रहा है, अपने हाथ से बनाकर खुद भी इस्तेमाल नहीं करता है और दूसरे को इस्तेमाल के लिए भी अपने हाथ से बनाकर कोई चीज़ नहीं देता है. तो कहा तेरे सोफ़े है अफरंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी. कहा ये नौजवान जो आराम परस्त हो गया है, जिसको आराम करना पसंद आ गया है, कहा नौजवानों की इस आराम पसंदी ने मुझे खून के आंसुओं से रोने पर मजबूर कर दिया है. तो मेरे नौजवानों,
اس ملک میں صحیح قیادت اور صحیح لیڈرشپ کی ضرورت ہے. یہ ملک مسائل کے سامنے جوجھ رہا ہے، اس کے سامنے صحیح راستہ دکھانے والا کوئی نہیں. اگر ہمارا نوجوان اپنے رب سے تعلق قائم کر کر اور تعلیم میں خوب محنت کر کر آگے بڑھ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ عمر کی جوانی میں اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہیں. کتنا؟ ایک آدمی. اس کو کہتے ہیں جوانی. آپ نے ڈرا نہیں، آپ گھبرائے نہیں، آپ نے پورے مکہ والوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے اللہ کا پیغام دیا، کیونکہ قرآن نے کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال جوانی کا ایسا نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا کہ آپ کے جیسی جوانی کی مثال دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے. ایسا صاف اور شفاف نوجوان زمانہ نبوت سے ملنے سے پہلے، اس لیے کہ جوانی یہ 15 سال سے لے کر 40 سال 45 سال تک کی عمر یہ جوانی ہوا کرتی ہے. دنیا میں اس وقت 800 کروڑ لوگ ہیں، جس میں سے 50% نوجوان ہیں. ینگسٹر کتنے ہیں؟ 50%. مگر حالت اتنی خراب ہے کہ کل پرسوں 2 دن پہلے میں گجراتی کے اخبار میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ موبائل کی لت جو ہے وہ کیسے لگی ہوئی ہے لوگوں کو، کہ 3 سال سے لے کر 7 سال تک کی عمر کا بچہ روزانہ کم سے کم 3 گھنٹے موبائل پر گیم اور ویڈیوز کے اندر میں خرچ کر رہا ہے. 78%. اور فزیکل ایکٹیویٹی وہ 30 منٹ بھی کرتا نہیں ہے. کتنے منٹ؟ 30 منٹ بھی نہیں کرتا. اور نوجوان کے بارے میں لکھا تھا اس میں گجراتی اخبار میں، انٹرنیشنل نیوز بنی ہوئی تھی وہ، کہ 8 سال سے لے کر 22 سال تک کا نوجوان یہ 4 سے لے کر 8 گھنٹے موبائل پر خرچ کرتا ہے. 4 سے لے کر، یعنی کوئی 4 گھنٹے، کوئی 5 گھنٹے، کوئی 8 گھنٹے. اور اس پیریڈ میں وہ کیا کرتا ہے؟ گیم کھیلتا ہے، سوشل میڈیا پر اپنا وقت ضائع کرتا ہے، وہ فلم دیکھتا ہے، وہ سیریل دیکھتا ہے، اور اسی میں اپنا خرچ. جبکہ انسان کی زندگی کا ایک ایک منٹ یہ 1000 کلو سونے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. کیوں؟ کہ سونا گیا تو مل سکتا ہے، مگر آپ کے ہاتھ سے جو 1 منٹ نکل گیا قیامت تک واپس نہیں آ سکتا ہے. اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ 1 منٹ مجھ سے بات کر لو. کہا تم سورج کو روک لو تو میں تم سے بات کروں گا. کہا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اپنا وقت ضائع کروں. تو دنیا میں مسلمانوں نے جو حکمرانی کی ہے اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو چرچا ہوا وہ ایسے ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ اس زمانے کا نوجوان اپنا ایک ایک منٹ یہ صحیح وقت اور صحیح جگہ پر خرچ کرتا تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عزتوں اور سربلندیوں سے نوازتا ہے، اور جو شخص اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو اپنے وقت کی قیمت کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اپنے پورے سسٹمیٹک اپنی لائف، آپ ٹھیک ہے اسکول پڑھ رہے ہیں، کالج پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے پورے دن کا شیڈول ہونا چاہیے کہ مجھے صبح میں نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، 2 رکعت اللہ کے سامنے تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے رونا ہے، اور پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے، 1 پارہ آدھا پارہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے،
دعا کرنی ہے، پھر اپنے دین کا آغاز کرنا ہے۔ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے، مغرب کے وقت میں مغرب پڑھنی ہے۔ آپ پورا آپ کا نظام ہو، کیا آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہ جائے تو پھر کہا جائے گا کہ آپ کامیابی کے طرف بڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات ماشاءاللہ اتنے جوش و خروش کے ساتھ یہاں پر جمع ہوئے، اور چونکہ آپ کی زبان ہم کو آتی نہیں، جس کو فارسی میں کہتے ہیں کہ یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ میرا دوست یہ ترکی زبان جانتا ہے اور مجھے ترکی نہیں آتی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ یار من منی پوری ومن منی پوری نمی دانم، کہ بھئی ہمارا یار ہمارے سامنے بیٹھا ہوا تو منی پور کا طبقہ ہے، لیکن ہم کو منی پوری نہیں آتی ہے، لیکن ہماری جماعت کی برکت سے ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہمارے نوجوان ایسے نظر آ رہے ہیں جو جماعت میں گئے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اردو سمجھ لیتے ہوں گے، اس لیے ہمارے لیے دشواری نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت آپ کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جیسا کہ سر نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان پورے طور پر اپنے دین اور تعلیم یہ دو کے ساتھ وابستہ ہو جائے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے کسی قسم کے ہمارے فیوچر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنا دین بھی نہیں چھوٹنا چاہیے اور تعلیم بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، اور اخلاق ہمارے صحیح ہو جانے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا مشرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ منی پور کی سرزمین کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ان نوجوانوں کو صحیح معنی میں اپنی زندگی کو فائدے کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے اللہ ان میں دین کو زندہ فرما۔ اے مولا کریم ان کو تعلیم کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، انہیں اپنے اخلاق کی اصلاح کی توفیق مرحمت فرما، اپنے والدین اور اپنے بڑوں کی قدردانی اور خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن اور بلاؤں اور مصیبتوں سے ان کی حفاظت فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرا عشق نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے مولا کریم اے اللہ اس سرزمین پر بہترین امت کے قائدین پیدا ہو جائے، ایسے اسباب مہیا فرما۔ اے ذی الجلال والاکرام تیری رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما، تیری ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایکوئی حائزکیبگی متنگینا نماز پونگ مری گمین نفود آدم لیپ سکیگنی نا پاوم کا کوئی نپی مسا سنگو ہتنگ پھم کیسے نپا سنگ جمتنگ ہانا تھوگن کیسے منٹ انی کھکتا۔ محترم حضرات، مغرب کی نماز ہے سون بگا انشاءاللہ ایکوئی غسی تلیبا مفہم اسی مغرب کی نماز متنگ دا پانگتھو کدوربا عظیم الشان اجلاس عام علماء و حفاظ صوبہ منی پور کی منگدگی دگی برکتگی ادنا مجلس سسر جاو بیربا علماء کرام سنگھ امسون لنگبی رگلبا مہمانان حضرات پن مقصو مغرب کی نماز متنگی اجلاس اسیدسو یومین نکیسی آئی بسی دارالعلوم مرکز کی میکیدگی درخواست وزری مسیح کی وکھن تھمبین نوس سنگجر کناگم سنگی موبائل فم دا کاو ہورے ادنا موبائل کاو ہو یاورو گدی مفہم سگی لورو بیا گنی انشاءاللہ۔ پیرو آدوس لاؤ تو آگے
somda la kana kana gumba singi money purse kahoba yaure yaragadi ma ki saktak se utlaga purse lobi be agan inshallah Muhammad Ramizuddin Sharo यार लग थोड़ी हंजल लखे तो बराबर नहीं nupi masa sing sino hogat pe yara ni tungom dagi site adum tam na chala si nupa sing na khoi nupi masa sing thorak pa kanda khatang khayal site tawraga leibina bagi damakta nolu na sinja lang jeri basing mai ke dagi ning sing jeri nupi masa sing thorak matam da voluntary sing na khatang suggestion guard to wina bagi damakta ning sing jeri aduga ikhoi yariba makai traffic jam thokna na bai damakta isa isa gi gari sing ado isa isa gi tartibta serial wise ta thamiba adugi matung in ikhoi thodok putara ga di gari sing ado traffic jam oi roi ikhoi han da ba yate ikhoi na thuna yang na yau da ba yate haibo wakhan tu ngai hak tang khan tharaga sabar to minaraga mang da lairiba makai du yariba makai hana chalhan raba matung da mathangi makhata na gari sing adu isa isa gi serial yorok pada chapi raga di traffic ki jam gi khudong thi basu laira roi aduna mayam gi dama khallaga ikoi sabar tawminnaraga isa isa na gai tawminnaraga isa gi wakhal du phajana sabar tawraga ikoi gari du chatminna ba niksing jare aduga nupi macha sing thorak liba du ikoi gi chinja lang jare bi sing gi balan tayar sing na gai tawbiraga makhoina tonglak liba gari sing adu da phajana side ta laire awang thangba side ta khamliba gari sing asida ikhoi tap na ing na tongkhallaga chapina na ba ningsing jare yare kari Maulana Firoz